Dear students, Control Systems course lecture series में this is the final lecture for the polar plot and Nyquist stability criterion, and in this lecture we will cover the example of Nyquist stability, and the lecture is the 11.8 of the 11th series. So let's start. तो Nyquist stability criterion का पहले देख लेते हैं कि how to solve the problem by Nyquist criterion with the steps. तो सबसे पहले count how many number of poles of g of s h of s are in the right half of s plane. This is the first step कि चेक करेंगे कि number of poles जो हैं वो this transfer function right hand side पे या right half of s plane पे कितने हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि with positive real part. So this is the value of p. इसको हम कहेंगे कि ये value of p है. Decide the stability criterion as n is equal to minus p. तो ये stability criterion के हिसाब से हम देखेंगे कि n is equal to minus p जो है वो क्या है कि how many times Nyquist plot should encircle minus 1 plus j0 point for absolute stability. तो ये देखेंगे कि Nyquist plot जो है वो encircle कितने टाइम्स पे करेगा जो कि minus 1 plus j0 point है for the absolute stability. Select Nyquist path as per the function g of s h of s. तो with respect to the different omega values हम देखेंगे कि Nyquist path जो है वो क्या बनेगा, और उसके बाद analyze the sections as starting point and terminating point of plot. तो sections देखेंगे according to the starting point and terminating point of the plot. उसके बाद जब ये एनालाइज हो जाएगा मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे ओमेगा पीसी, ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के बाद इंटरसेक्शन ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट निकालेंगे विद नेगेटिव रियल एक्सिस, जिसको हम कहेंगे कि पॉइंट Q है, बाय रैशनलाइजिंग द ट्रांसफर फंक्शन या फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन. So with the knowledge of the step 4 and 5, sketch the Nyquist plot. So इन दो के हिसाब से हम देखेंगे कि Nyquist प्लॉट जो है वो कैसे स्केच होगा, और उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स n of minus 1 plus j0 by Nyquist plot. If this matches with the criterion decided in step 2, so इसका मतलब ये है कि system is stable. So this is the step 2. We are going to start the step 1 from here. ठीक है, step 1 2 3 4 5 6 just like that. So knowledge with the knowledge of step 4 और 5 sketch कर लेंगे, और after that count the number of encirclements n minus 1 plus j0 by Nyquist plot. So if this matches with the criterion of the decided in step 2, this one, तो system is stable, otherwise system is unstable. तो गेन मार्जिन निकालने के लिए 1 upon OQ का मैग्नीट्यूड, वेयर Q जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ Nyquist प्लॉट विद नेगेटिव रियल एक्सिस, जो कि हम ऑब्टेन करेंगे इस स्टेप 5 में. दिस इज द स्टेप 5, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ स्टेप 1. और गेन मार्जिन इन dB इज इक्वल टू 20 log of 10 1 upon OQ का मैग्नीट्यूड इनटू dB. तो इस तरीके से हम गेन मार्जिन जो है वो निकाल सकेंगे फॉर द Nyquist stability criterion. So now let's move and solve the example of the Nyquist criterion. So a system of unity feedback control is this one. This is a transfer function g of s h of s is equal to 10 upon s into s plus 1 s plus 2, and we don't have any h of s here because it's a unity feedback control system. So how draw the Nyquist plot and comment on stability. तो solution start करते हैं. Step 1 is the number of poles in the right side of the S plane. तो हम देख रहे हैं we don't have anyone here.
This is -2, this is -1, and this is 0. So it means number of poles in the right half is p is equal to 0. For stability, n is equal to minus p is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि Nyquist plot should not encircle -1 plus j0 point for absolute stability of the system. Step 3 क्या है? क्योंकि we have one pole here at origin, so this means it should be bypassed by small semicircle. तो हम देख सकते हैं कि this is the j infinity, means plus j infinity, and the path is starting from here, and we have to select this point here, जिसको हम कहेंगे plus j0. एक small semicircle जो है वो move करेगा to this point, and this is a starting point, and this is the ending point or terminating point of for this semicircle. So this is minus j0, और उसके बाद ये continue करेगा towards minus j infinity. और अगर हम उसकी बात करें राइट हैंड साइड की, तो नाइक्वेस्ट पाथ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे, और जो रेडियस है वो टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज द रेडियस विच आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2, section 3 and this section 4 for the step 3. Now let's move to the next slide. तो एग्जाम्पल में स्टेप 4 जो है, अब मैग्नीट्यूड प्लॉट और एंगल प्लॉट निकालेंगे. सो जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे. पहले ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जे ओमेगा. तो वी हैव टू फॉर्म दिस ट्रांसफर फंक्शन इन दिस फ्रीक्वेंसी डोमेन, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेंगे. तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद m इज इक्वल टू 10 अपॉन दिस इज ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 1 plus omega square, and this is 4 plus omega square. So we have the magnitude value here 10 upon omega multiplied by 1 plus omega square का under root और 4 plus omega square का under root. This is the magnitude value. And now for the phi angle. So tan inverse 0 upon 10 divided by tan inverse omega upon 0, tan inverse omega upon 1, tan inverse omega upon 2. So after solving this, we will get the value of minus 90 degree minus tan inverse omega minus tan inverse omega upon 2. तो अब सेक्शन 1 की बात करें, तो सेक्शन 1 जो है वो अगर हम यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं सेक्शन इज फ्रॉम दिस j infinity plus j infinity to this plus j0. This is the section 1 from plus j infinity to plus j0. तो यहाँ पर भी हमने यही किया है. Section 1 is s is equal to plus j infinity to s is equal to plus j0. तो अगर हम इसमें से ओमेगा की वैल्यू लें तो हम देख सकते हैं प्लस j ओमेगा. तो here we have infinity, so that is omega is equal to infinity, and the second one is omega is equal to s is equal to plus j0, so means plus 0. So these are the omega values. तो अगर हम इन ओमेगा की वैल्यूज को इसमें पुट करें और स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम हेयर एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट इज टिल हेयर, तो जब हम इस वैल्यू को ओमेगा की इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड प्लॉट में या मैग्नीट्यूड की इस वैल्यू में पुट करें और साथ एंगल में पुट करें, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जब हम ओमेगा प्लस इन्फिनिटी, ये दिस इज अ प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो प्लॉट आता है वो आता है 0 फॉर द मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड माइनस 270 इज फ्रॉम द एंगल प्लॉट. तो ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं हमने पोलर प्लॉट्स के में, जो 11.1 2 3 4 जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम मैग्नीट्यूड प्लॉट को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से फेज एंगल प्लॉट को सॉल्व करते हैं टू फाइंड दिस स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स. तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट डायरेक्टली बता रहा हूँ. तो ओमेगा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे हम आएगा हमारे पास
0 is for the magnitude and minus 270 is from the phase angle. इस तरीके से ओमेगा प्लस 0 फॉर दिस वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन्फिनिटी फॉर द मैग्नीट्यूड एंड माइनस 90 फॉर द फेज एंगल प्लॉट। एंड अब हमें रोटेशन देखनी है कि एंगल रोटेशन क्या आएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन माइनस 90 माइनस इंटू माइनस 270, तो हम देख रहे हैं वी हैव द वैल्यू ऑफ प्लस 180 डिग्रीज। तो प्लस 180 डिग्रीज का मतलब ये हुआ ड्यू टू दिस पॉजिटिव साइन इट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हमारे पास यहाँ माइनस साइन होता तो इसका मतलब ये होता कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो नाउ वी हैव प्लस साइन हेयर, तो मीन्स 180 डिग्रीज ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इस स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम 0, ठीक है, और एंगल जो है वो टेंजेंशियल टू माइनस 270। तो दिस इज द 0, this is minus 90, this is minus 180 and this is minus 270. So we are going to start from 0 and tangential to minus 270. तो this is the minus 270, तो इसके साथ से ये मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ। और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है इन्फिनिटी एंगल ऑफ माइनस 90। तो हम देखेंगे दिस इज द 0 डिग्री एंगल एंड दिस इज माइनस 90 एंगल, ठीक है। तो माइनस 90 एंगल के साथ हमें कितना एंगल रोटेशन करना है, तो एंगल है 180 डिग्रीज। कितना, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये प्लस 90 है और हम इसको कह सकते हैं कि 90 एंटी क्लॉकवाइज इज 90, और इसके अलावा प्लस 90 और इसमें ऐड होगा। तो सेकंड जो है वो फ्रॉम स्टार्टिंग हेयर टू टर्मिनेट टू द टर्मिनेटिंग पॉइंट, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू प्लस 180। तो ये एंगल हमारे पास जो रोटेशन ऑफ एंगल है वो हमें 180 डिग्री मिल गया है, 90 इन दिस रीजन और 90 इन दिस रीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस 180 हो गया। और टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट है इंफिनिटी टुवर्ड्स एंगल ऑफ माइनस 90। तो दिस इज अ 0 एंगल एंड दिस इज माइनस 90। तो हम ये इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं इंफिनिटी और एंगल ऑफ माइनस 90। तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट द प्लॉट एट ओरिजिन, ठीक है, टेंजेंशियल टू माइनस 270, इससे यहाँ मूव करना शुरू करेगा और मूव करते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट करेगा थ्रू माइनस 180 डिग्री। मतलब ये जो है ये माइनस 180 डिग्री है, ठीक है, जो कि ये एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्रॉस करता हुआ आएगा और क्रॉसिंग करेगा इस नेगेटिव रियल एक्सिस को और हत्ता के पहुंच जाएगा इन्फिनिटी टुवर्ड्स माइनस 90 डिग्री। सो दिस इज द सेक्शन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब सेक्शन 2 की तरफ आते हैं। तो सेक्शन 2 जो है वो है प्लस J0 से माइनस J0। तो आप देख लें ताकि परेशानी ना हो। सेक्शन 2 इज प्लस J0 से माइनस J0, दिस इज द सेक्शन 2। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे। सो ओके, सेक्शन 2 पर आ चुके हैं। तो सेक्शन 2 पर प्लस J0 टू माइनस J0, इसका मतलब ये हुआ कि S इज इक्वल टू प्लस J ओमेगा, तो मीन्स प्लस 0 टू माइनस 0। तो ओमेगा प्लस 0 टू ओमेगा माइनस 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहां से होगा ओमेगा प्लस 0 से, इसको हम पुट करेंगे जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है और फेज एंगल की। तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी एंगल ऑफ माइनस 90, और इसी तरीके से टर्मिनेटिंग पॉइंट में जब ओमेगा माइनस 0 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 90 डिग्रीज। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 90 माइनस
माइनस 90 मीन्स प्लस 180। तो इसका मतलब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 180 डिग्रीज। तो हम देख सकते हैं कि स्टार्ट कैसे होगा। इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा माइनस 90 डिग्रीज। देख लेते हैं, दिस इज द इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस 90 डिग्रीज और एंगल ऑफ 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देख सकते हैं दिस इज द 90 डिग्री इन दिस रीजन, इस रीजन में, इससे इस रीजन में हम कह सकते हैं कि 90 डिग्रीज, और इस तरीके से इस रीजन से इस रीजन में 90 डिग्रीज, और प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 प्लस 90 180 डिग्रीज, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टार्ट हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी माइनस 90 और टर्मिनेट हुआ इन्फिनिटी प्लस 90। सो दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट, इन्फिनिटी और प्लस 90, ठीक है, फ्रॉम माइनस 90 टू प्लस 90। तो हम कह सकते हैं here as omega approaches to minus 0 the sign of pole at origin changes, hence net angle becomes plus 90। यहाँ पर हम इसको प्लस 90 कह रहे हैं। और इसके बाद सेक्शन 3 इज अ मिरर इमेज ऑफ सेक्शन 1 अबाउट द रियल एक्सिस, और इसी तरीके से सेक्शन 4 इज एन ओरिजिन। जो सेक्शन 4 है वो ओरिजिन पे है, जिसको हम ज़रूरी नहीं है कि उसको डिस्कस करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल सेक्शन होगा वो ओरिजिन पे होगा और उसको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टेप 5 की बात कर लेते हैं कि जिसमें हम ओमेगा पीसी जो है निकालेंगे, और ओमेगा पीसी के साथ साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू है उसको भी निकालेंगे। तो बिफोर स्केचिंग द प्लॉट कैलकुलेट ओमेगा पीसी एंड इंटरसेक्शन ऑफ नाइक्वेस्ट प्लॉट विद नेगेटिव रियल एक्सिस। तो रैशनलाइज करेंगे द ट्रांसफर फंक्शन। तो हमारे पास 10 अपॉन जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 2 प्लस जे ओमेगा, और ये सेम एग्जांपल है रैशनलाइजेशन की, जो कि प्रीवियस एक वीडियो लेक्चर में मैंने कवर कराई हुई है। और एज इट इज़ इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आएंगे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करने के बाद इसको हम डिनोमिनेटर को अलग अलग पोर्शन बना रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं। तो दिस इज द माइनस 30 ओमेगा स्क्वायर अपॉन डी और माइनस 10 जे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन डी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक रियल पार्ट ले रहे हैं और एक इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं, और डी जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है, दिस वन, ठीक है। तो हम सेपरेशन करेंगे रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की फॉर दी दिस ट्रांसफर फंक्शन। किस पे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पीसी पे। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर हम जीरो पुट करें तो हम देख सकते हैं कि आफ्टर द सॉल्यूशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 0 और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा स्क्वायर 2। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास 0 बचेंगी और 2 अंडर रूट, तो ये दो वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 को तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ओमेगा पी सी शुड हैव टू बी पॉजिटिव 1। तो 2 अंडर रूट को अगर हम ले लें तो ओमेगा पी सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एज इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन रियल पार्ट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी 2 अंडर रूट वी गेट। जब हम इसको इस पार्ट में डालें, इस पार्ट में ऐड करें रियल पार्ट में, तो हमें क्या मिलता है। तो आफ्टर द सॉल्यूशन, क्योंकि डी जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो आफ्टर द सॉल्यूशन वी हैव हेयर J0, दिस इज J0। तो हम जब फाइनल सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1 माइनस 1.66 प्लस J0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस 1.66 जो वैल्यू है, दिस इज द पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑन द रियल एक्सिस, जिसको हम पॉइंट क्यू कह रहे हैं। सो पॉइंट क्यू which is the intersection of polar plot with the negative real axis is minus 1.66 plus J0। तो अब ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से जो पोलर प्लॉट है वो ड्रॉ होगा। तो नाइक्वेस्ट प्लॉट क्या आएगा, तो हमारे पास पहले ये वाला प्लॉट आया, ठीक है। तो इस प्लॉट के हिसाब से हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद इसको मूव करवाया ऐसे, और मूव करते करते ये हमारे पास आके इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है।
हम देख रहे हैं एज इट इज। और दूसरा क्या था, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इन्फिनिटी से। और हम जो सेकंड वाला है वो ये है। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज द सेकंड पार्ट जो कि स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर फिनिश हुआ, ठीक है, इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। हम ये कह रहे हैं कि नोट दैट पॉइंट्स ऑन प्लस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एट इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? फॉर द सेक ऑफ शोइंग द नेचर ऑफ प्लॉट द पॉइंट्स आर शोन फाइनाइट। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो प्लॉट है उसको फाइनाइट शो करें। अच्छा, ये एरिया हमारे पास अब आ चुका है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है, सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 1 ये हो गया, सेक्शन 2 ये हो गया, और सेक्शन 3 क्या है, मैं जैसे आपको पहले बताया था, इज द मिरर इमेज ऑफ सेक्शन 1। तो हम इसका मिरर इमेज जो है वो ले सकते हैं एग्जैक्टली जो कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट Q को, और ये दिस इज द मिरर इमेज ऑफ सेक्शन 1 अबाउट रियल एक्सिस। और हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो है -1.66, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं, प्लस J0। तो ये जो है हमारा जो नाइक्वेस्ट प्लॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। और नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स हम चेक करें। नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स चेक करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि कितनी इनसर्कलमेंट्स जो हैं वो इस लाइन की ड्रॉ में आ रही हैं। तो हम देख सकेंगे दिस वन इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो मीन्स n इज इक्वल टू +2, ठीक है। +2 इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो n इज इक्वल टू +2 है, तो इनसर्कलमेंट्स जो हैं वो +2 हो चुकी हैं। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दिस नाइक्वेस्ट प्लॉट। हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स ऑफ -1 + J0 आर +2, जो कि अभी हमने देख लिया है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हम ये बात करते हैं कि n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मीन्स अगर n 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि सिस्टम इज अनस्टेबल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम फॉर दिस एग्जांपल इज अनस्टेबल। और अकॉर्डिंग टू द मैपिंग थ्योरम n इज इक्वल टू z माइनस p और 2 इज इक्वल टू z माइनस 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव z इज इक्वल टू 2 zeros। तो actually there are 2 zeros of 1 plus g of s h of s encircled by Nyquist path, that is 2 closed loop poles in right half of S plane, due to which closed loop system is unstable. So according to the Nyquist criteria, हमने ये देखा कि 2 zeros of 1 plus g of s h of s जो कि Nyquist path को encircle कर रहे थे, जिसको हम ये कहेंगे कि 2 closed loop poles हैं right half of S plane, जिसकी वजह से क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल है। और ये कंसेप्ट्स जो हैं वो पोल ज़ीरो की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने कंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गई है। थैंक यू।